Myself Rohit, once again welcome to our channel Prabhavi Competition Hub. On the important news, there are some important news on 27th of March which has been published on different newspaper of India. First important news that first global water conference after 50 years. So it is saying that after 50 years there was a first global water conference in which world community were thinking about or at least taking some pledge to deal with the water crisis. See, the crisis of water is a reality. Climate change, global warming, pollution, erratic rainfall, depletion of ice. There are a lot of pressure over your natural resources, especially the water. And there has been prediction that in coming time there will be a water crisis. ठीक है, India is under the category of water stress. वाटर स्ट्रेस की कैटेगरी में इंडिया को कंसिडर किया जाता है कि इंडिया में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा water availability. So first time when we meet in 1977, we took some decisions regarding the conservation of water. Now we are once again meeting in United headquarter in New York. New York में हम मिलते हैं इस बार, and we took 46 long years for the UN to organize the water conference in 2002. 46 साल बाद हम मिलते हैं, around 50 years हो जाता है. पहली दफा 1977 में मिलते हैं, and it was co-hosted by Tajikistan and the Netherlands. Tajikistan and the Netherlands, इन दोनों ने मिलके we have discussing that what we can do towards the preservation of water and towards the availability of water to the world community. So there are some actions taken, or you can say that there are some voluntary decisions taken by important nations of the world, in which the first one is that World Action Agenda, 700 voluntary commitments from the Water Action Agenda. Water Action Agenda में क्या करेंगे, जो आप देख रहे हैं कि that we are looking towards some preservation of water, saving water. Then the climate resilient water and sanitation infrastructure. See, these are the common things. Infrastructure होगा तभी हम कुछ सेव कर पाएंगे. And then technology, we should have some sort of technology, then only we can reduce the water consumption as well as do something for the removal of pollution from the water sources. USA announced a commitment of $49 billion. क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जापान ने कहा है कि दैट आई विल कंट्रीब्यूट 500 बिलियन येन टू द सॉल्यूशन ऑफ सोशल इशूज. सी, सोशल इशूज का मतलब हुआ there are lot of problem with the availability of water. It is also leading to the social chaos. Society में chaos भी होगा, migration भी होगा, pull factor, push factor आप देखोगे. So these are some of the social issues faced by the Asia Pacific region by developing quality infrastructure. रिवर बेसिन मैनेजमेंट की बात करता है तो उसमें वियतनाम ने कहा है कि वी विल लुक आफ्टर द पॉलिसीज फॉर मेजर रिवर बेसिन मैनेजमेंट, और हम जल्द ही 2025 तक लेके आएंगे और वाटर क्लीन कर देंगे हम 2003 तक. सो बेसिकली वी आर लुकिंग आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ पॉलिसी, सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट्स फ्रॉम द वर्ल्ड कम्युनिटीज, दोज हु आर इन्वॉल्वड इन दिस टाइप ऑफ दैट कोलैबोरेशन. सो आप देखिए कि यहाँ यूएसए, जापान, वियतनाम सब ने कुछ ना कुछ कहा. यूरोपियन यूनियन कह रहा है दैट वी विल सपोर्ट 70 मिलियन इंडिविजुअल्स टू and improve drinking water source and sanitation facility. See, sanitation and water availability, it is one of the your SDG. ठीक है, इसमें भी है ये. ठीक है, वाटर कन्वेंशन एंड ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन की बात करते हैं तो वहां पे कहा कि स्विट्जरलैंड 5 कमिटमेंट्स इन द एरिया ऑफ वाटर कन्वेंशन एंड ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन की बात करेगा. मतलब वी विल कम फॉर सम सॉर्ट ऑफ पॉलिसी, बट देयर आर सम चैलेंजेस लाइक एवरी कन्वेंशंस, एवरी प्रोटोकॉल्स. द प्रॉब्लम इज दैट दीज कमिटमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग. हमने एक बार डिस्कस किया था कि देयर आर 2 थिंग्स, वन इज कन्वेंशन, another is protocol. तो conventions जो है, action agenda जो है, these are of similar nature. There are no binding commitments, ठीक है, and there are no something to just falsify, or you can say that कि अगर किसी ने वो नहीं किया है, commitment fulfill नहीं किया है, तो he will have to pay back. ऐसा कुछ नहीं है. The water action agenda should include diverse experience and did not include the necessary communities. See, this is one of the just interpretation of environmental sustainability, that we should involve the people, communities towards the preservation of environment. अब देखो joint forest management का concept है जो आपका, ठीक है, it is basically this is community involvement. फिर आप देखो कि there is community reserves की बात की जाती है आपके, ठीक है, this is some sort of involvement of local people. The conference failed to address the violence and threat faced by communities trying to protect dwindling water sources. So this is what, they are not very much substantial, but at least it is just ceremonial that world communities once again coming together to look after or to develop some convention or some sort of policies towards the protection of water. और ये recent news था, इसमें आप देखो कि इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली ये कहा है, ये जस्ट 2 दिन पहले का न्यूज है, दैट महाराष्ट्र टू फेस वाटर स्कार्सिटी फ्लड. और इसने ये भी कहा दैट 40% ऑफ इंडियन विल फेस वाटर स्कार्सिटी बाय 2050. दैट इज व्हाई आई वाज डिस्कसिंग दैट वाटर स्कार्सिटी के टाइम में हम हैं.
हम स्ट्रेस में हैं एंड वी विल वेरी सुन गो टू द स्कार्सिटी के स्पेस में, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द अवेबिलिटी ऑफ पर कैपिटा वाटर, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और उनके पास कितना वाटर है। जब वो पहले स्ट्रेस में है, देन आफ्टर दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द स्कार्सिटी। एंड देन अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट IPCC ने ये कहा है that the climate change and rising demand mean that above 40% of people in India will live with water scarcity by 2050 compared with about 33%. तो हम अभी भी 33% जो 1/3 of your population is still having some sort of problem in water. तो क्या प्रॉब्लम है इंडियन वाटर में? तो वाटर प्रॉब्लम में है that availability, drinking water availability, then polluted water, depletion of groundwater. देन आप देखोगे कि देर आर इरेटिक रेनफॉल एंड लीडिंग टू लेस फ्लो ऑफ वाटर। हिंदू कुश जो है, दिस इज हिंदू कुश इज लूजिंग इट्स आइस कैप्स वेरी फास्टली। सो ऑब्वियसली ये जो नदियां हिंदू कुश से जो निकलती है, जो नॉर्दर्न इंडिया में आती हैं, अगर यहाँ वाटर नहीं होगा तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द पीपल, इट इज गोइंग टू गिव यू द सोशल टेंशन, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी होगी, सोशल टेंशंस होंगे, ये सब ये है। उसके अलावा दैट हेवी वाटर, दैट हेवी मेटल्स कंटामिनेशन, आप देखोगे कि आर्सेनिक वगैरह जो है आपके वाटर्स में पाए जा रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में जो यूज हो रहा है वाटर, दैट इज बियॉन्ड एनी लेवल, मतलब आप उसके ऊपर दिमाग नहीं लगा पा रहे हो कि आप कितना वाटर यूज कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 1819 आई थिंक, इट सेज दैट इंडिया इज एक्सपोर्टिंग वाटर, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वाटर। कैसे? दैट वी आर एक्सपोर्टिंग द क्रॉप्स विच आर वाटर गजलिंग, जो वाटर्स ले रहे हैं। जैसे आप गन्ना यहाँ से कर रहे हो एक्सपोर्ट, आप राइस कर रहे हो, तो ये वो क्रॉप्स हैं जो बहुत सारे वाटर कंजम्पशन को कर रहे हैं, और वी आर समहाउ अपने आप को ही डेंजर में ले रहा है। तो दिस इज व्हाट अबाउट द वाटर अवेबिलिटी एंड स्ट्रेस इंडिया इज फेसिंग। बैंगलोर में भी वाटर क्राइसिस हुआ था कुछ दिन पहले, अराउंड 1819, एंड देयर आर सो मेनी इंस्टांसेस जब आप जानोगे कि इस शहर में पानी की कमी हो गई है। सो दिस वाज द सेकंड न्यूज वाज दैट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, वी नो दैट द इंडो पैसिफिक रीजन इज अनदर बैटल ग्राउंड, और यहाँ पे दो कन्फ्लिक्टिंग पावर है, वन इज चाइना एंड अनदर इज USA, और बोथ वांट टू प्रूव देयर ओन मेटल, ठीक है। और USA के लिए जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, उसमें इंडिया इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस। वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर USA के साथ है। हमने लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट हमने किया है उसके साथ एग्रीमेंट, हमने बेका कॉमकासा, सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट्स जो हमने USA के साथ किया है, और इसका पर्पस ये है दैट स्ट्रेटेजिकली वी यूज वन अनदर रिसोर्सेज। और वैसे ही आगे आप देखोगे कि there are so many fonts are being created to tackle the ever expanding China. China is always a expansionist country. China जो है हमेशा से expansionist रही है, और वो आज भी expansion करती है। आप देखो कि साउथ चाइना सी में इनका प्रॉब्लम है, ये फिर इंडिया को, दैट इज द इंडिया, और यहाँ पे देखो कि इन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स पॉलिसी से इंडिया को इन सर्कमस्क्राइब करने की कोशिश की है स्ट्रेटेजिकली। फिर आप देखो कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से 60 कंट्रीज में इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, और वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज न कल चाइना इज गोइंग टू कंट्रोल दीज कंट्रीज। तो दिस इज व्हाट देयर आर सो मेनी, आप देखोगे कि और सेटअप्स बनाए जाते हैं, नेगोशिएशन फोरम्स बनाया जाता है। वैसा ही एक फोरम है ऑकस, तो ऑकस इज अ 3-वे स्ट्रेटेजिक डिफेंस एलियंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA। इसमें ऑस्ट्रेलिया और UK और US तीन ही पार्टनर्स है, और इसका जो एग्जैक्ट पर्पस ये जो कहते हैं दैट इट इज build a class of nuclear propelled submarine work together in the Indo-Pacific region where the rise of China is an increasing threat and develop wider technology. तो AUKUS का ये पर्पस है कि we will develop a nuclear propelled submarine so that कि we do not lose control to China in Indo-Pacific region. That is why AUKUS is being formed. But India को AUKUS की मेंबरशिप नहीं मिला है। इसको कहा जाता है कि इट्स अ मिनी क्वाड, इसको मिनी क्वाड के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया इस मीटिंग में दैट there is no place for the fourth one. अगर इंडिया अगर कहीं apprehensive हो रहा था that I should be the part of AUKUS, then there is nothing like place for other fourth country. और ये आप देखो, this is what इंडो पैसिफिक में आप देखो कि it is a new battleground, और यहाँ पे आप देखो कि there is a AUKUS, Australia, UK, US, ठीक है, and pact covers 40 billion deal with the France to build diesel submarines, ठीक है। Australia will receive Tomahawk cruise missiles, stand AGM-150 JSSM. Countries to collaborate in quantum technology and artificial intelligence. So cyber
साइबर कोलेबोरेशन की बात करते हैं, हम क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। हम नहीं करते हैं, बेसिकली ये ऑकस करता है, ठीक है, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑकस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हुआ दैट नाउ बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मशीन विच कैन अंडरस्टैंड, विच कैन टेक एक्शन बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग, ठीक है। और ये आप देखोगे कि एलेक्सा का नाम सुना होगा, एलेक्सा टेल मी द नेम ऑफ सो एंड सो सिंगर समथिंग, ये सब दीज आर सम सॉर्ट ऑफ artificial intelligence. But the world community or those who are very much prone to war have developed autonomous weapons. उन्होंने autonomous weapons को डेवलप कर लिया। और ये autonomous weapons क्या करते हैं कि based on their data they take their actions autonomously, ठीक है। और बहुत सारे मिसाइल्स कैसे डेवलपमेंट किया गया है, बहुत सारे रेडार्स जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे यूएसए कर रहा है। बट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द वार कल्पेबिलिटी, इमोशंस, ठीक है, हु विल बी कल्पेबल, दीज थिंग्स आर सो बेसिकली दे आर taking some more efforts towards the development of artificial intelligence based autonomous weapons or any weapons. Another that important you can say that ANGUS treaty, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए साथ आते हैं और इनका पर्पस है प्रोटेक्ट सिक्योरिटी ऑफ पैसिफिक इमर्ज्ड इन 1950 ड्यूरिंग द कोल्ड वार। सो इट्स अ कोल्ड वार के टाइम की कुछ कहानियां बता रहे हैं। क्वाड की देखेंगे, मेंबरशिप देखेंगे तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का नाम देते हैं हमने 2007 में। इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जापान के जो शिंजो आबे थे, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने इसको डेवलप करने की बात की थी, ठीक है। और अल्टीमेट इनका पर्पस आप देखोगे कि घुमा फिरा के ये चाइना को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा एक 5 आईज है जो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ये एंटी सोवियत इंटेलिजेंस शेयरिंग फोरम है। इसमें 4 मेंबर जो है अपोजेस चाइना टू टेक बैक ताइवान इन 2049, ठीक है। चाइना बोलता है कि 2049 में आई विल टेक बैक द ताइवान, ठीक है। और ये जो वो कंट्रीज हैं यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो इसको अपोज करते हैं, वी विल नॉट लेट यू डू, वी विल नॉट वायलेट फ्रॉम द रूल बेस्ड ऑर्डर। आपके पास पावर हो सकता है बट स्टिल वी विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट, ये उनका पर्पस है। तो दिस इज व्हाट अंजुस के बारे में पढ़ा, ऑकस के बारे में पढ़ा और क्वाड के बारे में पढ़ा। ये है दैट दिस इज अ न्यूज विच इज इन रिलेटेड टू योर दैट अर्थ एटमॉस्फेयर। इसमें ये कहा जा रहा है कि देर यूएस की जो नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक जस्ट लाइक नासा विच इज डीलिंग विद द स्पेस, वैसे ही एक यूएस की नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा है, ठीक है। नोवा इज डीलिंग विद द स्पेस एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओशन से भी ये डील करते हैं। तो उन्होंने अभी एक जस्ट न्यूज रिलीज किया है दैट वी आर विटनेसिंग अ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, और जिसकी सीवियरिटी ग्रेड है G4 विच इज द सेकेंड हाइएस्ट ग्रेड पॉसिबल। तो थोड़ा सा हमें इसमें अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर को समझना होगा, ठीक है, एंड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को समझना होगा। और देन वी विल गो अहेड, क्या है इसका सीन। तो मैग्नेटोस्फेयर कहता है दैट द मैग्नेटोस्फेयर इज द रीजन अबव द आयनोस्फेयर डिफाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस several 10 of thousand of kilometer into space, protecting the earth from the charged particle of the solar wind and cosmic rays, strip away the that would otherwise strip away, अगर ये नहीं होता, strip away the upper atmosphere including the ozone layer that protects the earth from harmful ultraviolet radiation. Many cosmic rays are kept out of the solar system by sun magnetosphere. See, ये कहना क्या चाह रहा है, it's trying to say that कि there are different, ये this is your earth, tropo, strato, meso, thermo, ino, exo. This is your different layer of atmosphere. Now it is saying that कि at the earth आप देखोगे यहाँ से ionosphere के above there is a magnetic field, ठीक है। this is a magnetic field, this is like this, और ये magnetic field इससे connect होगा, ये north pole है, ये south pole है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये इसको देखोगे it's like this magnetic sphere and this is like this half circle. There are different, you can say that आपके इंडिया में भी इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रहा है और हमने इसके डिफरेंट उसको डिवाइड किया। अब ये बोल रहे हैं कि this is very important because it protects you from the anything which is coming from the solar winds. तो solar winds क्या होता है, तो सोलर से जो टेम्परेचर्स या बहुत सारे जो रेज निकल रहे हैं वहां से जो निकल रहा है वो इसको हम बोलते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन। कोरोनल मास इंजेक्शन से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट व्हाई दिस इज टेकिंग प्लेस, मतलब दिस you can say that why there is a magnetic area. So there that is due to the convection motion of charged molten iron far below the surface of the outer core. तो ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपका आयरन है और यहाँ पे इसके कारण आप देखोगे कि इसके घूमने के कारण
So you will realize that there is a magnetic field which is protecting you from the cosmic rays and ultraviolet rays. So ये आपने देख लिया कि फेसिंग, और उसके बाद ये कहते हैं कि कांस्टेंट बम्बार्डमेंट बाय द सोलर विंड कंप्रेसेस द सन फेसिंग साइड ऑफ द मैग्नेटिक, तो सन की तरफ होता है वो थोड़ा चिपटा हो जाता है, ठीक है, एंड और कुछ नहीं, द साइड ऑफ द मैग्नेटिक फेसिंग फ्रॉम द नाइट साइड स्ट्रेचेस इनटू एन इमेंस मैग्नेटोरियल व्हिच फ्लक्चुएट, दीस आर सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज ऑफ वेरी साइंटिफिक वैल्यू बट नॉट फॉर जनरल स्टडी पर्पस. चलो आगे देखते हैं. दैट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की बात करता है, ये आपने देखा मैग्नेटोस्फीयर. नाउ देयर इज अ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म. जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है? डिसरप्शन टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड काउज्ड बाय द सोलर इमिशंस. और यही मैं बात कर रहा था, कोरोनल मास इजेक्शन और हाई स्पीड सोलर स्ट्रीम, वहां से सन के पास से कुछ निकलता है और वो आपके अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में आके दैट बॉम्बार्ड करता है, ठीक है. दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर मैग्नेटोस्फीयर एंड दिस इज एयर एंड पील्स इट ओपन, और इसको खोल देता है, ठीक है. द पीलिंग अलाउज एनर्जेटिक सोलर विंड पार्टिकल्स टू स्ट्रीम डाउन एंड हिट आवर एटमॉस्फेयर ओवर द पोल्स एंड दैट इज व्हाट. अब जब मैग्नेटोस्फीयर से निकल जाता है तो आपके एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है एंड रैपिड ड्रॉप इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सीन एट द अर्थ सरफेस, ठीक है. द डिक्रीज लास्ट अबाउट 6 to 12 hours, after which the magnetic field gradually recovers over a period of several days, ठीक है. तो जैसे ही कोरोनल मास इजेक्शन आता है, ये 6 से 12 घंटे तक आपका जो है देयर इज अ गैप, और ये गैप से आपके ये जो यूवी रेज हैं और जो कॉस्मिक रेज है दे रीच टू द योर surface, atmosphere, upper layer. The solar event can supercharge auroras and make them visible in places where they would not be. अब auroरा का नाम सुना होगा कि there is something in australosis in south pole and borealis in north pole. तो ये क्या है? These are the just आपके ये इफेक्ट हैं, ये कोरोनल मास इजेक्शंस को ये अच्छे से दिखा पाते हैं, और इसके कारण ये वहाँ भी दिखने लगेंगे जहाँ पे नहीं दिखते हैं. नॉर्मली ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे दिखते हैं, ठीक है. देर इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है दैट नोवा हैज इशूड 2 जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वॉचेस. ये लास्ट ईयर की कहानी है जो उन्हें 2 वॉच बनाया था. और इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है जो दैट इज बेस्ड इन मुंबई, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर है विच इज़ इन साउथ एशिया. सो ये आपने जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में देखा, तो इससे इफेक्ट ये हो सकता है कि योर दैट इलेक्ट्रिसिटी समथिंग चार्जेस कनेक्शंस दीज विल बी अफेक्टेड, ठीक है, इन कमिंग डेज अगर ऐसा कुछ होता है तो. नेक्स्ट इज दैट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, और आज का जो प्रोजेक्ट है इट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. जैसे हमने वाटर को डिस्कस किया, वैसे ही डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन इज एन इम्पोर्टेंस एग्जाम फ्रॉम पर्सपेक्टिव, ठीक है. और उसमें आप देखोगे कि इंडिया इज लूजिंग लॉट ऑफ प्रोडक्टिव लैंड ड्यू टू डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, और इस डिजर्टिफिकेशन में आप देखो कि द वेस्टर्न इज अफेक्टेड. और ये थार का जो रीजन है, थार की जो बालू है दैट इज इंक्रीजिंग, और रीजन बिहाइंड इज दैट ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ग्रेजिंग, ठीक है, एंड नॉट कटिंग ऑफ ट्रीज. इस तरीके से आप देखोगे कि दिस इंडिया के जो रीजन में ये बढ़ रहा है, ये वेस्टर्न साइड की जो कहानी है, ठीक है. सो दैट पर्पस हमने एक 1400 किलोमीटर का एक ग्रीन वाल प्रपोज किया है, और ग्रीन वाल जो है ये हमने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने बोला है कि वी विल डू समथिंग लाइक दैट, एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन 4 स्टेट. कौन से? जहाँ पे अरावली होंगे, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, और इसमें 5 किलोमीटर का वाइड बेल्ट बनाएंगे, ठीक है. वाइड बेल्ट मतलब ग्रीन बेल्ट मतलब 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट, पौधे लगाएंगे और कुछ नहीं, और सो दैट की जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है वो यहाँ पे रुक जाए, इसके आगे ना जा पाए. और इसके अलावा और क्या है दैट वी आर टेकिंग इट इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट ग्रीन वाल. ग्रेट ग्रीन वाल जो है कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये सेनेगल से जिबूती के बीच में, जिबूती कंट्री अफ्रीका में है, तो ये आप देखो कि इनके बीच में भी ऐसा कुछ ग्रीन वाल बनाने की बात की जा रही है. तो हमने भी वहां से बोला कि हम 5 किलोमीटर का एक वाइड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन वाल, जो पौधे होंगे, वाल का मतलब ग्रीन वाल हो गया यहाँ पे. दूसरा है दैट इसरो पुट्स 36 सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट. कुछ नहीं, ये छोटी सी कहानी है. LMV का नाम सुना है हमने, किसी में बात किया था कि जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उसको हमने बनाया. ASLV ऑगमेंटेड सोलर लॉन्च व्हीकल, दैट स्पेस लॉन्च व्हीकल, देन PSLV, देन वी कम विद द GSLV में हम आ गए GSLV Mark 3. तो GSLV Mark 3 इज द मोस्ट हेवीएस्ट यू हैव, और इसमें आपने देखा है कि जो चंद्रयान जो 2 था 2019 में, इट वाज लॉन्च्ड बाय दिस GSLV Mark 3, ठीक है. अब GSLV Mark 3 को इन्होंने नाम दिया LVM3, यही है लॉन्च व्हीकल, ठीक है. इस LVM के थ्रू हम लॉन्च करेंगे. वी हैव लॉन्च 36 वन वेव सैटेलाइट्स. तो है क्या ये वन वेव सैटेलाइट? सी प्रोवाइडिंग इंटरनेट, नाउ इंटरनेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन is your basic necessity. In many judgments inside your country, outside your country, it has been considered that it is just more or less like a human right, ठीक है. अब आगे आप जब पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि there are many projects which are just trying to provide information and internet to those who are not connected. जो not connected है उनको देने की बात कर रहा है. So उन्हीं की जब बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे that
वन वेब कॉन्स्टलेशन इज अ प्लान नेटवर्क। अब इसमें बोला कि 648 लोअर अर्थ सैटेलाइट्स बनाएंगे एंड इट्स एम टू डिलीवर हाई डाटा थ्रू आउटपुट लो लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब है कि दैट इफ देयर इज टू इक्विपमेंट्स द रिसीविंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दैट सम इंफॉर्मेशन और सम सिग्नल्स एंड हाउ मच टाइम यू टेक टू रिस्पॉन्ड एंड ट्रू ग्लोबल कवरेज एंड कम्पिटिटिव प्राइस की बात करते हैं। पहला 6 जो सैटेलाइट था वो 2019 में उन्होंने छोड़ दिया था, लगा दिया था ऊपर लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और 36 सैटेलाइट अभी उन्होंने फिर से लॉन्च किया जो अभी कल परसों की लॉन्च हुआ। वन वेव विल हैव प्लेस 70% ऑफ इट्स प्लान्ड नंबर ऑफ Gen 1 लो अर्थ ऑर्बिट एज अ पार्ट ऑफ इट्स हाई स्पीड ग्लोबल ब्रॉडबैंड प्रोग्राम। इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन अलास्का, कनाडा, यूके एंड द आर्कटिक रीजन। इंडिया के जो भारतीय इंटरप्राइज है, जो भारतीय एयरटेल है, इज मेजर इन्वेस्टेड एंड शेयर होल्डर इन OneWeb। तो यूके के साथ वी आर कोलैबोरेटिंग। अनदर प्रोजेक्ट जो आप न्यूज़ में सुनते हुए इज स्टारलिंक। द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज मच मोर। स्टारलिंक में आप देखो कि देयर आर मोर देन 2000 सैटेलाइट्स, 2112, एंड इट्स आल्सो प्रॉमिस टू वी विल ऑफर इंटरनेट टू 100 to 200 megabits per second। इसका भी ये कहना है कि मेरी लेटेंसी बहुत लो है, सो पॉसिबली मैं बहुत अच्छा नेट सर्विस प्रोवाइड करूंगा। और ये कौन कर रहे हैं? स्टारलिंक। टेस्ला का नाम सुना होगा आपने, और टेस्ला का जो दैट चीफ है, ठीक है, टेस्ला का जो चीफ है उसका ये प्रोग्राम है स्टारलिंक कॉन्स्टलेशंस। दिस वाज द न्यूज़। वन वेब प्रोजेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ऑल दोज आर नॉट कनेक्टेड बट द रीजन 50% नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, और ये है इस रीजन में करेंगे अंडर द 5 to 50 सैटेलाइट्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद द एयरबस। देखो ये फैक्ट्स होते हैं। एयरबस ने इस पे एविएशन में रिलेटेड एक कंपनी है और एयरबस ने इसको सपोर्ट किया है। एरियन स्पेस सियोज रॉकेट्स कहाँ पे? ये फ्रांस में है। तो ये सब इन पे कोलैबोरेट कर रहे हैं और दे कैन प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर सिग्नल, फास्टर स्पीड, प्रोजेक्ट्स कैन क्रिएट। बट प्रोजेक्ट स्टारलिंक, प्रोजेक्ट स्लून, ये किसका? प्रोजेक्ट लून अल्फाबेट, ऐसा ही एक प्रोग्राम है, इट्स ऑफ गूगल। गूगल भी यही बोला है कि स्ट्रेटोस्फेयर में आई विल गिव यू बैलून्स, और इस बैलून्स में इंटरनेट के लिए आपके पास सर्विसेज होगा। ये बैलून्स आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। एक्विला प्रोजेक्ट फेसबुक का। सो फैक्ट इज दैट ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट जो सैटेलाइट बेस्ड जो इंटरनेट है, दैट इज हेल्पफुल वेयर देयर इज नो नेट कनेक्टिविटी। ठीक है, इट विल कर्व डाउन डिजिटल डिवाइड। बहुत से रीजन में अभी भी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर जहाँ पे होता है वहाँ पे आप देखोगे द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच रिक्वायर्ड इज द कम्युनिकेशन। जाके कभी केदारनाथ में थिंक अबाउट दैट, क्या हुआ होगा लोगों के साथ when they had no communication with the world community. So this communication system will help them and India is also taking a lead। ठीक है, हमने भी अपना पहला जो स्टेप है, हमने कुछ IRNSS वगैरह कुछ डेवलप किया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स। ये अभी नेविगेशन दे रहे हैं हम, वी आर जस्ट गिविंग देम द नेविगेशन टू आवर, and इसका एरिया ऑफ दैट इज मच बियॉन्ड इंडियन बाउंड्री एंड इट इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ GPS सिस्टम या आपके जो रशियन सिस्टम है GNSS, उन सब के अगेंस्ट में हमने भी कुछ बनाया है नेविगेशन सिस्टम। तो वेरी सुन मे इंडिया इटसेल्फ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड कनेक्टिविटी। एंड दिस वाज ऑल न्यूज़ फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच। दीज आर द रियली इंपॉर्टेंट न्यूज़। जस्ट गो थ्रू द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। कीप इन टच, watch our videos, share with others. Any comments, any changes, suggest me. Thank you very much. See you very soon. Thank you. Have a nice day.